کے شو میں بلوچستان خاتون اور مرد کا بہیمانہ قتل، حکومت کا ایکشن۔ مقتولہ خاتون کو 7 گولیاں لگی، پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ واقعہ 4 جون 2025 کو پیش آیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف۔ غیرت کے نام پر قتل، ریاستی حکمت عملی کیا؟ ماورائے عدالت قتل، مقامی جرگے اور سرداری نظام سنگین سوالات کی زد میں۔ سیاہکاری اور کاروکاری کے پے در پے واقعات مربوط، حکمت عملی ناگزیر۔ السلام علیکم، سے پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ زفان خان۔ ناظرین، جو صورتحال اور جو واقعہ ثانیہ بلوچستان میں ہوا، اس واقعے کو لے کر بہت سے کانٹیکسٹ سے اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ کچھ لوگ اس کو شاید لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بلوچستان میں یا وہاں کے سرداری نظام کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک ایپیڈیمک، ایک پینڈیمک کی طرح غیرت کے نام پہ قتل ہوتے رہے ہیں، پے در پہ ہوئے ہیں، نہ صرف بلوچستان میں ہوئے ہیں، سندھ میں ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، دیگر صوبوں شہروں میں ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوورآل جو پاکستان کے اندر، اور جینڈر پیرٹی رپورٹس بھی اگر آپ دیکھیں جو عالمی فورمز کی ہیں، انٹرنیشنل فورمز کی ہیں، اس میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں۔ یہ جو حالیہ واقعہ یہ جو ہوا، اس واقعے کے بارے میں جو گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی، اور خاص طور پہ وزیر بلوچستان کی اسٹیٹمنٹ آئی، آپ کو ذرا اس کے کچھ حصے سناتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ یہ شادی شدہ نہیں تھے، ناٹ میرڈ۔ انہوں نے جو کہا تھا ذرا وہ سنتے ہیں، ذرا شارٹ آپ کو، اور 2-3 حصوں میں گفتگو سناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں۔ ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ اور اسی طرح سے ناظرین، جب ان سے اس حوالے سے مزید کہ کیا ایکشن ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ تقریباً 11 کے قریب افراد گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ جو 11 افراد گرفتار ہوئے، اس کے علاوہ آپریشن جاری ہے۔ لیکن جو ڈی ایس پی کی معطلی یا سسپینشن کے بارے میں اور جو ایکشن لیا اس پر ریاست نے، حکومت نے، اس پہ کیا کہا وزیر اعلیٰ نے، لیٹس ہیئر دس۔ جائیں گی کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں۔ تو دس از دا ریئلٹی۔ لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں اور کسی خاتون کا قتل کریں۔ بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ اور ناظرین، اس صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہے تو ایک ثانیہ، ایک ایپیڈیمک ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پر قانونی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ہونی چاہیے، خاص طور پہ اس اہم واقعے کو کیا ہم بھول جائیں گے چند دن بعد؟ ریاست کا ایکشن کیا منطقی انجام تک ان مجرموں کو پہنچائے گا، نہیں پہنچائے گا؟ منیب قادر صاحب سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، سابق آئی جی پولیس، آئی جی سندھ یہاں پہ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ منیب قادر صاحب پہلے فرمائیے گا، کیونکہ پہلے تو ایک کانٹیکسٹ میں، ایک زمرے میں اس کو دیکھا گیا کہ یہ بلوچستان اور سرداری نظام سے متعلق ہے، لیکن ایک براڈر کانٹیکسٹ میں یہ واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں اور ہر جگہ ہوئے ہیں۔ ابھی بھی رپورٹ ہوا تھا، خیبر پختونخوا میں ہوا تھا۔ تو یہ صرف کہہ دینا کہ بلوچستان یا سرداری نظام کا اس کا باعث ہے، یہ کیا کافی ہوگا منیب صاحب؟ کہ آپ ساری بات بلوچستان کے اوپر لا دو اور آپ اس طرح سے پریزنٹ کرو سچویشن کو جیسے کہ یہ تو صرف بلوچستان کے اندر ہی ہوتا ہے، جبکہ یہ پورے ملک میں آپ بالکل صحیح ورڈ کیا، ایپیڈیمک کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ یعنی پورے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں آئے روز پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک اور خاتون کا قتل ہو گیا ہیلتھ کے نام کے اوپر، اور ابھی حال ہی میں بلکہ کل خبر ملی تھی کہ جو خیبر پختونخوا ہے ادھر بھی جوڑے کا ایک آدمی کا قتل ہو گیا، ان کے بیچ میں بھی ایک ریلیشن شپ تھا۔ تو یہ چیز اگر ہم کہنا شروع کر دیں کہ یہ صرف بلوچستان کے سردار ایسا کرتے ہیں اور بس وہاں ہوتا ہے،
तो फिर फोकस आपका मूव कर जाता है कि वो एटीट्यूड जिनकी वजह से खवातीन को अपनी खून के साथ कीमत चुकानी पड़ती है सोशल एटीट्यूड्स की खैर को लेकर, हम वहां से फोकस हटाते हैं और हम फोकस करते हैं बलोच कल्चर बलोचिस्तान, तो इसलिए इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं हो रही। हाँ, बलोचिस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, कोई कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर सबके क्राइम्स होते हैं, सरदार कल्चर, जिरगा वगैरह, लेकिन एक सोच है जो कि पूरे मुल्क में फैली हुई है और वो सोच हमेशा यही हम लोगों को सिखाती है और कहती है कि खवातीन वो बर्डन है, वो बोझ उठाएंगी अपने खानदान का और अपने पूरे माशरे की इज्जत का, और अगर माशरे को या खानदान को लगता है कि उन्होंने वो इज्जत का जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो उस पर खरी नहीं उतरी, तो फिर जायज है कत्ल कर देना। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इसमें मुफ्ती साहब की सुन रहा था, जो चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब, ये भी मतलब बात करने क्यों रहे हैं कि वो जुम्मे की शादी हुई थी या नहीं थी, वो साइड ऑफ स्टोरी पेश करने के लिए ना वो कानून मौजूद है ना वो आदमी मौजूद है। तो ये भी मुझे डिस्ट्रैक्शन लगता है। आप सीधी तरह से ये बताएं कि हैरत के नाम पे आज किस तरह से हो रहा है और अभी तक महीने से ज्यादा हो गया ये वाकया पेश आया है और हुकूमत को भी इस चीज का पता चला, यानी सोशल मीडिया पे अगर वायरल नाम था तो ये बात बिल्कुल दफन हो जानी। अच्छा डॉक्टर ज़मीन साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि मुनीब साहब की थोड़ी आवाज़ भी रुक के आई है, ये बताइए कि ये जो वाक़या हुआ, ये जिस तरह भी जो सवाल था और जो उन्होंने खूबसूरती से बयान भी किया, ये सिर्फ ये कहना कि बलूचिस्तान में था क्योंकि आप यहाँ पे सिंध में रहे और आप ऑन पोस्ट रहे, ये वाक़यात रिपोर्ट हुए और होते रहे और अभी भी हो रहे हैं, इसकी कोई रोकथाम नहीं हुई? एक वाक़या हुआ, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई, रियासत मुतारे, कोई एक्शन हुआ, ये मुअत्तल, ये गिरफ्तारी, उसके बाद फिर ये वाक़यात आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम भूल चुके होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जिरगा या जिरगे को कन्वीन करना या जिरगे का कोई जजमेंट देना या उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये तमाम स्टेप्स हैं ही गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक से ज़्यादा जजमेंट्स हैं इसके हवाले से कि जिरगे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और हम जहाँ बैठे हैं सिंध में, लकीली इस लिहाज से पूरे पाकिस्तान में सबसे प्रोग्रेसिव है कि यहाँ पर जिरगा के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कानून मौजूद है। मैं ख़ुद जब एडिशनल आईजी सक्खर रीजन था, क्योंकि सिंध में सक्खर रीजन यानी सक्खर डिवीज़न और लाड़काना डिवीज़न, यहाँ सबसे ज़्यादा कारोकारी के वाक़यात पेश आते थे, ऑनर किलिंग के वाक़यात पेश आते थे। तो आई मेड इट अ पॉइंट कि हम जहाँ भी कोई वाक़या होता था हम केस रजिस्टर करते थे, जो जिरगा कन्वीन करता था उसके जो मेंबर्स होते थे उनको हम अरेस्ट करते थे, वो भाग जाते थे, कराची आके छुप जाते थे, लेकिन हम उनके पीछे पड़े रहते थे, उनके वारंट्स निकलवाते थे, नॉन बेलेबल वारंट्स निकलवाते थे, एक डिटरेंस पैदा करने के लिए। अच्छा। और मैंने कोई 1 साल से थोड़े ज़्यादा अरसे में मैंने देखा कि हमारे इस परसिस्टेंट एक्शन की वजह से वहाँ पर फिर ऐसे वाक़यात होना बहुत कम हो गए। इक्का दुक्का शायद अब भी होता हो, लेकिन अगर आपके पास लॉ हो, मुझे नहीं पता बलूचिस्तान में ऐसा कोई लॉ है, आई डाउट इट, तो अगर लॉ ही नहीं तो वहाँ इन्फोर्स क्या होगा। दूसरी बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, ऑल अबाउट योर माइंड सेट। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान के नहीं, पंजाब के, सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब के लोग जो यूरोप में सेटल हुए हैं, जो वहाँ पे भी, वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चों को वो अपने अंदाज से चाहते हैं ज़िंदगी गुजारे, उनकी ज़बरदस्ती पाकिस्तान में कज़न से शादी कर देते हैं, और जब वो यहाँ पर नहीं सेटल हो पाती उनके मर्डर्स होते हैं, और इटालियन पुलिस और जर्मन पुलिस वो पुलिस से रब्ता करती है, उनके कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, और कुछ बच्चों को तो यूरोप के अंदर भी बच्चियों को मर्डर कर दिया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, अहम तरीन इस साहने पर गुफ्तगू हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, रियासत का मौजूदा इक़दाम कैसा था। ईद से पहले वाक़या आया, वाक़े का नोटिस हुआ है ईद और मुहर्रम यानी 10 मुहर्रम के बाद, और उसके भी कई दिन बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, फिर सीएम ने नोटिस लिया है, उसके बाद पुलिस ने मुतारिक हुई है, फिर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये तो बहुत ही वीक और स्लो रिस्पॉन्स है। इस हिसाब से तो फिर किस तरह हम ऐसे वाक़यात की रोकथाम करेंगे? एक ब्रेक के बाद ये सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हक़ाइक़। ये जो वाक़या बलूचिस्तान में हुआ, जो सानिया हुआ, अलमनाक बेहमाना कत्ल हुआ, इस वाक़े पर वज़ीर बलूचिस्तान का मौक़िफ़ भी आपने सुना, लेकिन इस वाक़े को लेकर जो रियासती रद्द-ए-अमल रहा वो इंतहाई सुस्त रहा। यानी जब कई महीने बाद वीडियो वायरल होती है ऑन सोशल मीडिया, उसके बाद वज़ीर आला नोटिस लेते हैं, फिर पुलिस इन एक्शन आती है, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है जो मुल्ज़िम है इस केस में, उनको फिर गिरफ्तारियां होती हैं। तो ये जो पेस है रियासती रद्द-ए-अमल का, मुनीब कादिर साहब योर कमेंट ऑन दिस, इस स्पीड से तो हम शायद इंतजार करें जब कुछ वायरल हो जाए ऑन सोशल मीडिया, उसके बाद उस पर कोई एक्शन, यानी जब कोई नोटिस हो तो फिर एक्शन होगा। ये मसाइल कारण होती है, ये जब तक एक बात वायरल नहीं हो जाती है, चाहे वो कितना ही किस्म का, लेकिन रियासत एक्शन भी नहीं आएगी, कोई पुलिस वाला नहीं होगा, उतना ही पता होगा, उतनी ही खबर होगी जितना एक आम आदमी कोई काम और खबर है। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस वक्त एक आम शय चला था कि किस तरह चीज हुए महीने से भी ऊपर हो गया है, हुकूमत को इस बात की खबर भी हुई कि जी गैरत के नाम पर खुलेआम, और बल्कि काफी देर तो ये भी अंदाजा नहीं था कौन है का कत्ल हुआ है, वो किधर का फ्लाइट थी है और उसकी बॉडी किधर है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैं भी ना चीफ जस्टिस सरफराज की भी जी विक्टिम आगे नहीं आए, वो 15 साल का बच्चा था उसका, वो जो खातून नहीं आया, 15 साल के बच्चे आगे आएंगे। तो देखिए मेरा ये पॉइंट है कि विक्टिम तो इस तरह, यानी जिसके खिलाफ ऑफेंस कमिटेड है, स्टेट खिलाफ ऑफेंस कमिट हुई है, और 2016 कानूनी तरमीम की आई के इर्द कि जब भी कभी ऑनर किलिंग केसेस होंगे तो वहां स्टेट में केस के अंदर मुदाखलत करेगी, वहां स्टेट सबक किया जाएगा, स्टेट खिलाफ ऑफेंस। तो विक्टिम नहीं है, तो विक्टिम जो स्टेट है, विक्टिम ये है, क्योंकि अगर इस मुल्क के अंदर और मर्द के केस अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ मुनीब थोड़ी कट कट के आ रही है, लेकिन जो मैं समझूं बात ये कि आप कहते हैं कि स्टेट मस्ट बी द, जो इस केस के अंदर जो स्टेट है मुद्दई होना चाहिए उसको मुकदमे में। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो बात है, लेकिन जब ये जो रिस्पांस टाइम है, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि ये तो यानी जब नोटिस होता है सीएम का, उसके बाद पुलिस इन एक्शन आती है, और उसके भी यानी जब तक वीडियो वायरल नहीं होती, जब तक सीएम का नोटिस नहीं होता, तो जब तक, तो कैसे मामला इस तरह चलेंगे ऐसे किसी रियासत में? इट इज सिंपली पैथेटिक। वाकया अगर 4 जून को हुआ है, अब हम जुलाई के मिड के भी पास बैठे हैं, तो और जो वज़ीर आज़म बलूचिस्तान का, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, वो भी कोई दिल से बात नहीं कर रहे थे, अपोलोजेटिक थे, कोई फीलिंग्स नहीं थे, ऐसा नहीं लग रहा था कोई नहीं इस वाक़े पे कोई अफसोस है। बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, शायद वो दिल से इस चीज़ पे यकीन नहीं करते कि किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि अगर एक एडल्ट लड़की और लड़का आपस में शादी करना चाहते हैं तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून भी इजाज़त देता है, तो किसी तीसरे को क्या प्रॉब्लम है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अगर ये सोशल मीडिया पे ना आता, अगर ये वायरल ना होता, तो कुछ भी नहीं होना था। और जाने ऐसे कितने वाक़यात जो वायरल होने से बच जाते हैं, जिनका कोई नोटिस ही नहीं लेता। और आपने अगर वो 1-1.25 मिनट की वीडियो देखी हो, मैंने तो कई दफ़ा देखी है, उस खातून का गाड़ी से उतरना, कई दफा टच करता किसी ने एक दफा नहीं देखी होगी, मैं कई सबने वो बड़ा ऑनरेबली चल रही है। शी इज कन्विंस्ड कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे पता है कि वो बेगुनाह है और उसकी जान ले जाने वाली है, बट स्टिल लुक एट द वे शी वॉक्ड। वो गई है, एक जगह रुकी है, फिर उनके और आगे चली, जो वो और आगे चली गई है। उसके बाद शायद उसका भाई, सगा भाई था, जो उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। मतलब इट्स हार्ट रेंडिंग। एक लगता है जैसे किसी मूवी में से कोई सीन है, हकीकत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज रियलिटी हैपनिंग ऑन आवर ग्राउंड पाकिस्तान में। और मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं सोचता हूँ किसी और, मुझे इस्लामी मुल्क कोई 56-57 है, जहन में नहीं आता कि कहीं और वीडियो बन गई है। ये तो वीडियो बन गई ना। ये अगर वैसे अगर देखा जाए तो ये अब सुना है कि जिसने वीडियो बनाई है पुलिस उस तक ही पहुँच रही है। वैसे तो ऐसे कई वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वीडियो भी नहीं बनती ना, कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बस आपको विक्टिम मिल गया बस कि ये हुआ है। ऐसे मेरा ख्याल शायद कम से कम 50% वाक़यात ऐसे होंगे जिनके बारे में मुझे, आपको, मीडिया को, इवन सोशल मीडिया को भी पता नहीं चलता। अच्छा। और मैं ये सोचता हूँ सोशल मीडिया हमें पता चले ना पता चले, लॉ एनफोर्समेंट को पता चलता है या उनको भी नहीं पता चलता? बलूचिस्तान में चूँकि आबादी बहुत कम है, फिज़िकली बहुत बड़ा है, मुमकिन है
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक खबर ना पहुंचती हो, अगर पहुंचती भी हो तो वो इसको लाइटली लेते हैं, अच्छा। बिकॉज दे प्रॉब्ली इन देयर हार्ट एंड माइंड थिंक कि ये सही है। अच्छा, आपको लगता है इट वाज अ हाफ हार्टेड, अगर जो फ्रॉम द सीएम्स एफर्ट की आप कह रहे हैं कि आपको लगता है ये सोशल मीडिया का प्रेशर था, अच्छा, जो उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाया और उन्होंने कुछ एक्शन किया, एक लूक वार्म सा किसी डीएसपी को सस्पेंड किया, वो फिर बहाल हो जाएगा, बट दैट लेडी एंड वो दैट पर्सन दे विल नॉट कम बैक, वंस यू डेड यू गॉन फॉरएवर। कोई मर्जी आप नोटिस लें, शो काज नोटिस दें, सस्पेंड करें, इससे वो जोड़ा तो वापस नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो आप मुनीम, आप एग्री करेंगे इट वाज अ हाफ हार्टेड एफर्ट फ्रॉम द सीएम, या जो उनका टोन था? बिल्कुल, आपने देखिए कि जब तक हमारे सियासतदान, हमारे लीडर कि की प्रॉब्लमेटिक है हमारे खवातीन और उनकी गैरत ले, क्योंकि अभी जी इसके अंदर मर्द तो मरा है, तो ये खवातीन का तो इशू नहीं है, लेकिन वो जो बचा है जिसकी बुनियाद पर हुआ है मर्द खातून का, वो एक खातून हमारे खानदान की खातून, उसकी जरूरत कैसी होगी कि वो हम माने। तो जब आप गैरत का एक पूरा औरत पर डालते हो, इस मुल्क में इतने सारे वाक़यात होते हैं, कैसे कर चुके हुए हैं। हमारा भी एक वज़ीर आज़म हुआ था, वो कहता था कि जी अगर खवातीन बड़े मुख्तसर लिबास पहनेंगी फिर जिनसी तरक्की होगी, क्योंकि मर्द रोबोट तो नहीं। और हमारे साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने कहा कि देखो हमारे जलसों के ऊपर तो खवातीन नहीं नाच सकती, वो पार्टी के जलसों के ऊपर खवातीन नाचती, हमारी खवातीन। तो जिधर हम हमारी बनाते हैं, हमारी कानून साजी करते हैं, उनके ख्यालात हैं खवातीन को लेकर, तो उनको ना मुझे नहीं काफी उनको हैरानगी होती है जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक हद तक जस्टिफाइड भी है। अब देखें ये वो कही है कि शादी नहीं हुई थी वो के साथ, ये जरूरत क्या है? आप ये तो कह रहे हो कि इसमें जस्टिफाई नहीं होता कत्ल करना, लेकिन आप लोग को ह्यूमनाइज कर रहे हो, इस तरह की बातें करते हो। मुझे वक्त भी नहीं पता कि वो खातून की शादी हुई भी थी या वो नहीं थे, क्योंकि अब तो वो खातून अपनी साइड मौजूद ही नहीं है। अब किसी के ऊपर अगर आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर आए तो वो तो सबसे आसान काम है, वो तो खुद है नहीं कि वो जवाब देके अपने आप को डिफेंड कर सकें या क्लैरिफाई कर सकें। सही, यानी वो खुद तो नहीं, खुद तो अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर सकती खातून जो नाबाक हो गई इसमें। जी, उनकी मौजूदगी में इस तरह से सारे जमाने के आके की बात खोलना कि वो जी उनकी शादी और उनके आप निजी जिंदगी के बारे में इतनी बात अगर आप रिवील हो, ये आपको बात करनी मुनासिब नहीं थी आपके नजदीक। अच्छा, मैं लास्टली जब से आपके नजदीक इसको रेक्टिफाई करने के लिए व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन ताकि आगे ऐसे वाकयात ना हो? देखिए, बात यह है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और ये सिर्फ अवेयरनेस से ही हल होगा, एजुकेशन से ही हल होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया में हाईएस्ट रेट है, जबकि हमारा हेल्थ का और एजुकेशन का बजट सुकड़ता जा रहा है, और एरियाज़ पे हम स्पेंड कर रहे हैं, इन पे नहीं कर रहे। और मतलब है कि ऐसे वाक़यात सिंध में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं, बलूचिस्तान तो सबसे बैकवर्ड है, तो हमें फोकस करना होगा उसकी डेवलपमेंट पे। वहाँ पे तो सड़कें ही नहीं है कि कोई आके पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर सके, तो एक जनरल ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, एंड वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन और प्रॉपर एजुकेशन। ये जिस तरह का हमारा फेक सा एजुकेशन का निज़ाम है, दिस विल नॉट हेल्प। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मुनीम कादिर साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और अहम तरीन वाक़े साहने पर गुफ्तगू हुई कि इसकी रोकथाम मुस्तकबिल में कैसे हो सकती है और क्या कोशिश की जा सकती है, रियासत का रद्द-ए-अमल कैसा था, गुफ्तगू हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।